Students, in class 8 biology, just I am going to teach you the chapter conservation of the plants and animals. In this chapter, conservation of the plants and animals, in previous lecture I have described the conservation of the forest and wildlife, and the government of India is setting up biosphere reserves, national parks and wildlife sanctuaries in different parts of the countries for preserving or conserving and protection of the wildlife protection and forest. So today's topic, the biosphere reserves. In biosphere reserves, just I will tell you what is the biosphere reserves and how many numbers of biosphere reserves established by Indian government in India, and lastly I will explain the biodiversity hotspots. तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. Yes, biosphere reserve is an international conservation designation given by the UNESCO and under its program on MAB. मतलब बायोस्फीयर रिजर्व एक इंटरनेशनल कंजर्वेशन है जो डिजाइन किया गया है यूनेस्को पर, उसके प्रोग्राम के तहत MAB पर. Yes, there are two terms, UNESCO and MAB. Full form of UNESCO is United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. यह जैसा कि जो यूनेस्को है, जिसका फुल फॉर्म मैंने बताया, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ ए फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन, फ्रांस का ऑर्गेनाइजेशन है. और दूसरा है MAB, इसका फुल फॉर्म है मैन एंड बायोस्फीयर. तो लास्ट में ये आता है कि व्हाट इज़ द बायोस्फीयर और हाउ यू कैन डिफाइन द बायोस्फीयर. Biosphere Reserve is an international protected area designed by UNESCO, meant to have a balanced relationship between man and nature, along with promoting sustainable development. Means Biosphere Reserve एक इंटरनेशनल प्रोटेक्टेड एरिया है, डिजाइन किया गया यूनेस्को के द्वारा, जिसका पर्पज है कि मनुष्य और प्रकृति दोनों में जो संतुलन बनाए रखे, उसके सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करने के साथ साथ उसको बोलेंगे हम बायोस्फीयर रिजर्व. द वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व is a collection of 669 biosphere reserves in 120 countries. लगभग 120 देशों में 669 बायोस्फीयर रिजर्व्स का कलेक्शन है वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स में. बायोस्फीयर रिजर्व्स that is generally created to promote and demonstrate a relationship between man and biosphere. मनुष्य और जीवमंडल दोनों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए, संतुलित संबंध बनाए रखने के लिए प्रमोट और डिमॉन्स्ट्रेट करता है कौन? बायोस्फीयर रिजर्व्स. भारत सरकार ने भारत में लगभग 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स की स्थापना की. द इंडियन गवर्नमेंट हैज एस्टेब्लिश्ड 18 biosphere reserves in India, and
Out of 18, the 10 biosphere reserves are a part of the world network of biosphere reserves. 18 में से जो 10 बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं वह वर्ल्ड बायोस्फीयर वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर के पार्ट हैं जो आधारित है यूनेस्को और MAB पर. Some programs listed, some biosphere reserves are here. जैसे फर्स्ट नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व्स, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व्स, थर्ड सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व्स, 4 गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व्स. ये 4 इंडिया के बायोस्फीयर रिजर्व्स का नाम दिए गए हैं. इसके बाद आता है बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट. बिफोर गोइंग टू बायोडाइवर्सिटी हॉट ऑफ, I will show you the biodiversity in India. Yes, the biodiversity in India. First ये आता है Himalayas. This majestic range of the mountain in the home to a diverse range of flora and fauna. Flora means group of the plants, fauna means group of the animals. And Eastern Himalayas is one of the 2 biodiversity hot spots in India. Next आता है the Thar desert, that is generally found in the Rajasthan. The climate and the vegetation in this area is a contrast to the Himalayan region. Third is the Western Ghat. It is one of the 2 biodiversity hotspots in India. And the last, that is shown by the green in color, and it is Sundarbans, and the largest mangrove forest in India. In term biodiversity hotspot, there are 2 words, biodiversity and hotspot. Biodiversity is the diversity in लिविंग ऑर्गेनिज्म, माने जीवों में विविधता. और हॉट स्पॉट मतलब वो कौन सा क्षेत्र है जहाँ मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स के बीच में वेरिएशंस होते हैं. जैसे इन दिनों आप न्यूज में देख रहे हैं कि हॉट स्पॉट्स ऑफ द कोरोना, मतलब किस एरिया में कोरोना के ज़्यादा पेशेंट पाए जाते हैं. उसी तरह वो बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट मतलब कि वह रीजन भारत का जहां अधिक से अधिक प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में वेरिएशन विभिन्नताएं पाई जाती हैं, और उस एरिया को बोल देंगे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स. ये बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट इज ए बायोजियोग्राफिकल रीजन. ये क्या है? एक बायोजियोग्राफिकल रीजन है विच एक्सिबिट ए हाई डिग्री ऑफ स्पेसीज रिचनेस, इंडेमिज्म एंड इज थ्रेटेंड विद द डिस्ट्रक्शन. Definition of biodiversity hotspot. They occupy only 2.3% of the Earth's land surface. ये जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हैं वो अर्थ के लैंड के 2.3% ही कवर करते हैं, बट आर होम टू मोर देन 50% ऑफ द प्लांट्स एंड मोर देन 40% of the mammals, birds, reptiles and amphibian species of the world. मैंने इसमें लगभग जो 2 पॉइंट्स अर्थ सरफेस को ऑक्यूपाई करते हैं उसमें लगभग 50% से ज़्यादा प्लांट्स और 40% से ज़्यादा जो स्तनधारी प्राणी हैं, चिड़िया हैं, रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप हैं,
और उभयचर स्पीसीज हैं। करेंटली 36 सच रीजन्स हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे 36 क्षेत्र पहचाने गए हैं पूरे विश्व में। उसमें से 3 का नाम जो कि भारत में है यहाँ दिया गया है। पहला आता है ईस्टर्न हिमालयाज, जिसको कि आपने चित्र में देखा, इंडो बर्मा रीजन एंड वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। यस, जस्ट इस वीडियो के देखने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप पूरी तरह से ये बायोस्फीयर रिजर्व्स के बारे में समझ गए होंगे। और समझने के बाद कुछ होमवर्क के लिए मैं प्रश्न दूंगा। इन प्रश्नों को आप अपने घर पर होमवर्क कॉपी में पूरा करेंगे, जिससे ये लॉकडाउन के समय आप अपने समय का सदुपयोग कर सकें। तो आइए हम होमवर्क के प्रश्न देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ए बायोस्फीयर रिजर्व? नेम 4 बायोस्फीयर रिजर्व्स इन इंडिया। Second question, write the full form of following. A. UNESCO, UNESCO. MAB, that is the B. And third and last question, write the number of biosphere reserves in India established by Indian government.